is given to be a quadratic expression such that quadratic equals x has no real solution, then we need to prove that f of x equals x will also have no real solution. Now this is very technical concept. Usually what I have seen in most of the resources, again unfortunately it is done in a conceptually wrong way. So here is a way to give you a correct way of doing this question. Now instead of solving that question for quadratic, first I am giving you a general exposure of how to solve this. This will also be beneficial for those who wants to find the solution of f of x equals f inverse x when x is in the domain. Mistakenly, many students, and in fact unfortunately many tutors also, tells you that f equals f inverse x solution set will always lie on the solution set of f of x equal to x. Now that is entirely wrong statement, because you can think of f of x equals minus x plus sin x, and as you can see when x tends to infinity it will go to Patal Lok, when x is plus infinity minus infinity it will go to Mount Everest kind of. So this function is basically it will be doing something like this. Sin x is giving a snaky movement and minus x is throwing you from heaven to hell, right, kind of. अब यहाँ पे clearly if you'll see the inverse of this, okay, इसका inverse function if I'll take the image let's say along the line equals y equal to x, तो inverse कुछ ऐसा आपको मिलेगा. Just rough pictures I am drawn, बहुत ही rough diagram I have drawn. So clearly the solutions for all this inverse lie along the line y equal to minus x, ठीक है, except one solution y equal to x and y equals 0, which is definitely 0 comma 0 is the solution for this equation. So if I tell you what is the solution for fx equals f inverse x in this case, you can't tell the all solutions of this will be the solutions of f of x equal to x, right? तो वो फिर गलत हो जाएगा यहाँ पे. So in general that is not true. In fact for decreasing function, if f is a decreasing function, then the solution set of fx and f inverse x, okay, might not be same as solution set of f of x equal to x. But for continuously increasing function, that statement will be true. So what I'm telling is, if a function f of x is continuously increasing and suppose f of x equals x has a solution, it means some function cuts it, then definitely its inverse function will also have a solution on the same line y equal to x. Okay, so these two statements are definitely different. So for continuously increasing function we can conclude this statement, for decreasing functions we can't conclude. One more example which I want to show you is minus 1 by x. Now you know this function is increasing because y dash equals 1 by x square, so it's positive for all x, and definitely it's a discontinuous function at x equals 0. But still if we'll take the mirror image of this along the line y equal to x, so if I take f of x equals minus 1 by x, so f inverse is same thing because this branch will reflect here and that branch will reflect there, so it's basically having self inverse. Now you see if I tell you what is the solution set of f of x equals f inverse x here, so that's entire real number line, right? Possibly you can ignore 0 because that's not in the domain. So now you can clearly see, okay, although f of x equal to x has no real solution, because this branch never cuts y equal to x. Moreover, minus 1 by x equal to x cannot be true because x square is negative. But f inverse x equal to f of x has infinitely many solutions. F inverse x equal to f of x also means, like in the respective domain, if x belongs to the domain for both function f inverse and fx, then if I take f on both side compositions, this will be f of f inverse x, and as always x for all x in the domain. Okay, so the takeaway from here is, if I tell you what is the solution set of f inverse equals f, that will definitely be same as solution set of f of x equals x. So this is true, but whether it will be same as solution set of f of x equal to x, it may be, it may not be. When it will be, there is only one condition, when it will be, when f is continuous and increasing function. क्योंकि यहाँ पे देखो all the function increasing हो गया बाबू अपने डोमेन में, 0 to infinity में ये increasing है और ये भी माइनस इन्फिनिटी 0 में इंक्रीजिंग है, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन सेट जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पे लाई नहीं कर रहा है, तो डिसकंटिन्यूटी के कारण हो गया. सो इवन इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग बट डिसकंटिन्यूअस हो गया तो फिर भी आप कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते. इसीलिए ये बहुत खतरनाक मिसकंसेप्शन है, ठीक है, जो बुक्स में काफ़ी सारे आपको मिलते हैं. सो इट शुड बी क्लियर. द पॉइंट वाज
of course not to discuss this inverse thing, but the idea was very much intimately connected. That's why I've discussed. चलो अब इस प्रॉब्लम पे आते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम करने से भी आपको इस पे इनलाइटमेंट आएगा. So now the question is, if f of x equal to x has no real solution, then f of x has also no real solution. ठीक है, क्या ये means basically we have to prove it, like from the first statement can you conclude this or not. So you have to tell, let's say yes or no. You have to conclude both for this continuous function and this continuous function. तो चलो पने में continuous function के लिए एनालाइज करता हूँ. ठीक है, तो केस 1 में बनाया continuous function के लिए, CF के लिए. Now according to the problem statement, if f of x equals x has no real solution. So एक रफ पिक्चर बना लेते हैं. So let's say this is y equal to x, और यहाँ पे ये कोई भी क्वाड्रेटिक है. ठीक है, एफ ऑफ एक्स, तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. ठीक, तो अब मुझे प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का भी कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा. अब ऐसे तुम लॉजिकली सोचोगे तो कोई बच्चा ऐसा सोचेगा सर एफ ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक है तो एफ ऑफ एक्स कैसा बनेगा, वो 4 डिग्री का बनेगा. तो 4 डिग्री तो ऐसा डांस कर सकता है 2 बार. ठीक है, अब ये वाई इक्वल टू एक्स को कट नहीं करेगा. अब देखो यहाँ पे तो डायग्राम से लग रहा है कट कर सकता है. इट मीन्स ये कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है. तो हम कैसे गारंटी देंगे जो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, ये आपको प्रूव करना है. ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है. यहाँ पे द मेजर प्रॉपर्टी दैट आई विल बी यूजिंग इज कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन. और देखो कंटिन्यूटी कितना खतरनाक सा प्रॉपर्टी है फंक्शन का. मेनी टाइम्स वी इग्नोर इट, बट हियर यू डोंट हैव एन ऑप्शन. अब सपोज मैं प्रूव बाय कंट्राडिक्शन करता हूँ. सपोज इफ आई टेल देयर इज अ पॉइंट ए सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल्स सी, मतलब इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट जाके हम बात करते हैं. तो अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए, ठीक है, तो एफ ऑफ ए का कुछ वैल्यू रहा होगा, बिकॉज फंक्शन तो यहाँ पे सपोज हम क्वालिटी के लिए करते हैं. तो लेट्स से एफ ऑफ ए कुछ बी है. तो यहाँ से क्या आ गया, एफ ऑफ ए बी आ गया और एफ ऑफ बी ए आ गया, क्योंकि एफ ऑफ ए को इस क्वांटिटी को मैं बी लिया तो एफ ऑफ बी क्या हो गया, ए आ गया. इसका मतलब इतना तो मुझे पता है, जो चाहे एफ, अगर एफ कंटिन्यूस फंक्शन है, अगर एफ कंटिन्यूस फंक्शन है तो फंक्शन के पास 2 आउटपुट हैं. क्या क्या आउटपुट है, अगर वो मशीन में मैंने ए डाला बी निकाला, फिर मशीन में मैंने बी डाला तो ए निकाला. इसका मतलब फंक्शन पे 2 पॉइंट जरूर से ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए. अच्छा, अब सपोज ए कॉमा बी इज एयर, then where is b comma b and b comma a will always be reflection along line y equal to x. It's not about inverse right now. I'm not talking about anything about inverse. ठीक है, मैं तो सिर्फ पॉइंट का बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर a comma b यहाँ है तो b comma a कहाँ पे मिलेगा, वो तो y equal to x के रिफ्लेक्शन ही होगा. ये आप कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हो या फिर ऐसा कर सकते हो. सपोज एक तुम ये डस्टर को ऐसा ले लो, चौक या डस्टर. अब इस अपार्टमेंट को अगर तुम y equal to x लाइन में रिफ्लेक्ट करोगे तो ये अपार्टमेंट ऐसा बन जाएगा. ठीक है, ये क्यों बन जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो लेंथ था सपोज ए बी था, अब क्या बन जाएगा, ये डिस्टेंस जो सोया हुआ था वो यहाँ खड़ा हो गया है, उठ गया, और जो यहाँ पे वॉज इन स्टैंडिंग पोजीशन वो यहाँ इस स्लीपिंग मोड. तो ये ए कॉमा बी जो हो गया तो कितना हो गया, बी कॉमा ये आ गया. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिस डिस्टेंस इज ए, दिस इज बी, तो दिस पॉइंट बिकम्स बी कॉमा. आई थिंक दिस इज द बेस्ट विजुअल विच गिव्स यू फील. तो अब देखो, अब वो जो भी कंटिन्यूस फंक्शन है, इन दिस केस इज क्वाड्रेटिक, उसको इस दोनों पॉइंट से गुजरना ही होगा, क्योंकि फंक्शन पे ए पे बी आना चाहिए और बी पे आना चाहिए. क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, सो ए और बी में एक कंटिन्यूस लिंकेज होगा. तो फिर फंक्शन कैसा बनेगा. अब तुम कुछ भी ट्राई कर लो संसार में, इस जगत में कुछ भी ट्राई कर लीजिए, अगर इस दोनों से पास कर रहा है तो क्वाड्रेटिक ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, कुछ भी हो. अब उसके पास ऑप्शन ही नहीं है. ठीक है ना. हाँ, अगर कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं ए और बी से नीचे क्वाड्रेटिक लाऊंगा, तुम ले आओ. तुम कैसे भी लाओगे इस क्वाड्रेटिक कर्व को एक ना एक बार तो वाई इक्वल टू एक्स पे कट करना ही होगा. देखो यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया. इट मीन्स अगर ये पॉसिबल है, इफ़ एफ ऑफ ए इक्वल्स ए, इट मीन्स देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इज ऑल्सो इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, सम पॉइंट लेट्स से अल्फा, ओके, और सम पॉइंट बीटा. तो ये तो वायलेशन हो गया. ये वायलेशन क्यों हुआ, ये वायलेशन इसलिए हुआ क्योंकि हम इस कंडीशन को वायलेट करते हैं. इसका मतलब आई कैन टेल देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉइंट ए सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू ए, प्रोवाइडेड द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड एफ इक्वल टू एक्स हैज नो सॉल्यूशन. क्योंकि यहाँ से तो एफ ऑफ एक्स सॉल्यूशन देने लगा ना. अब देखो द क्वाड्रेटिक वाज नो स्पेशल, क्योंकि अगर मैं अब कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन ले लूँ और अगर मुझे चाहिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हो,
सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मान लो अगर कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन में ऐसा ले लो, डेफिनेटली अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का कोई सॉल्यूशन नहीं है और एफ टू एक्स विच मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स का अगर कोई सॉल्यूशन आएगा तो डेफिनेटली उस फंक्शन ग्राफ पे एफ ऑफ एक्स के ग्राफ पे ए बी और बी ए को रहना ही होगा। ठीक, अब अगर ए बी और बी ए को रहना होगा तो फंक्शन तुम कैसा भी बना लो, एक ना एक बार तो उसको ज़िंदगी में अगर ए बी और बी ए के सफ़र में वाई इक्वल टू एक्स को कट करना ही होगा। तो यहाँ तो एक ऑलवेज सॉल्यूशन मिल जाएगा एक्स इक्वल टू अल्फा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये स्टेटमेंट जो वाई इक्वल टू एक्स को इट्स नॉट कटिंग, वो रॉन्ग हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। तो यहाँ से ग्रेट टेक अवे क्या है? ग्रेट टेक अवे इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूअस। अब ये चीज़ यूजुअली नहीं लिखते हैं बुक वाले, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जे एडवांस कभी पूछ सकता है, राइट। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस अंडर दिस कंडीशन दिस स्टेटमेंट डेफिनेटली भी होल्ड्स ट्रू। ये तो पक्का सही होगा। चलो अब दूसरा, इफ़ एफ इज डिसकंटिन्यूअस, तब क्या होगा? तब सही है, तब गारंटी नहीं है जो होगा ही। क्यों? क्योंकि सपोज यू हैव वाई इक्वल टू एक्स, अब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो हो सकता है ए कॉमा बी और बी कॉमा ए इज स्टिल द पार्ट ऑफ द फंक्शन, लेकिन फंक्शन ऐसा हो जाए। ठीक है, तो अब तो फंक्शन डज नॉट हैव ऑब्लिगेशन to have a smooth path from a comma b to b comma a because function is discontinuous. So still we have a function such that f of a is b and f of b is a. But you see here this function f of x is not cutting y equal to x. ठीक है, तो even if f of x is not cutting y equal to x, still we can have f of a equal to a. अब ऐसा तो पॉसिबल हो ही सकता है डिसकंटिन्यूस फंक्शन के केस में। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूस फंक्शन के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके पास क्रिस्टल क्लियर है। जस्ट टू गिव यू वन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल फॉर दिस, दिस इज वेरी टेक्निकल कॉन्सेप्ट। लेट्स से इफ आई टेक एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस वन बाई 5x क्यूब माइनस वन। ठीक है, अगर मैं ये फंक्शन का बात करूँ और अगर मैं तुमसे पूछूं इसका सॉल्यूशन जो होगा, सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन, या हाउ मेनी रियल सॉल्यूशंस इट विल हैव। Okay, how many real solutions? Or indirectly I'm asking find the number of real solution of f inverse x equals f of x. अब अगर कोई बच्चा ऐसा बोला सर f इनवर्स x इक्वल टू f ऑफ x का नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इट विल बी सेम एज जो सॉल्यूशन होगा f ऑफ x इक्वल टू x का। तो आप f ऑफ x इक्वल टू x का अगर सॉल्यूशन फाइंड करोगे यहाँ से, ठीक है, तो एक्स क्यू माइनस एक्स इक्वल टू 5x4 माइनस एक्स हो गया। यहाँ से विल गेट 5x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखोगे इसका कोई रियल सॉल्यूशन है ही नहीं। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हैज नो रियल सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन एफ ऑफ एक्स का सॉल्यूशन आएगा। अब कैसे समझेंगे आएगा? एक तो तरीका है तुम एफ ऑफ एक्स फाइंड कर लो। ठीक है, एफ ऑफ एक्स फाइंड करके उसको एक्स से इक्वेट करो और वेक्टराइज करके उसका आंसर लाओ। तो यहाँ पे वो कैलकुलेशंस बहुत डिफिकल्ट आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। दोज हु वांट टू कैलकुलेट एफ ऑफ एक्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पार्ट, क्योंकि दिस कैलकुलेशन एडवांस विल नॉट आस्क, लेकिन लॉजिक तो पूछ ही सकता है। दैट विल बी एक्स क्यूब 31x6 माइनस 18x³ प्लस 3 डिवाइडेड बाई, फर्स्ट कैलकुलेशन इज आसान, x9 माइनस 15x6 प्लस 1, राइट, ऐसा होगा। राइट नाउ यू कैन ट्रस्ट मी। अब जब इसको मैं x रखूँगा तो फिर जो इक्वेशन आपके साथ बनने को आएगा वो आएगा x टाइम्स 30x9 माइनस 31x8। दिस आई एम टेलिंग जस्ट टू सरप्राइज यू। इट्स अ टाइट स्लैप ऑन दोज हु फील्स f and f inverse solution will be same as solution set of f of x equal to x in general. In general that's not true. तो यहाँ से एक वैल्यू तो x इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ से एक वैल्यू x इक्वल टू 0 आ गया, राइट। नेक्स्ट, अब इसको फैक्टराइज करना है, तो इसको फैक्टराइज करके आप हिडन ट्रायल ले सकते हो विच विल टेक टाइम। सो क्लियरली 1 इज द रूट बिकॉज सम ऑफ कोएफिशिएंट्स तुम देखोगे ये मर रहा है, 0 हो रहा है, तो 1 रूट तो निकल गया। अब दूसरा रूट, अब इस पर यू हैव टू गिव टाइम। ठीक है, आइदर न्यूटन्स मैनिपुलेशंस और आपको हिडन ट्रायल खतरनाक वाला लगाना होगा विच इज़ नॉट इन योर सिलेबस। तो अभी आप हमें ट्रस्ट कर लो, जो आफ्टर फैक्टराइजेशन एंड गिविंग लॉट ऑफ ट्रायल्स
इट कैन बी शोन लाइक यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, ओके. So f of x equal to x is already giving no solution, लेकिन f of x equal to x is giving this equation. अब इस इक्वेशन का ब्यूटी क्या, यहाँ से जो आप तुम देखोगे, ठीक है, तो इसके पास तो एक रूट आ गया 0, इसके पास भी एक रूट आ गया 1. अब ये क्वाड्रेटिक है तो इसका b कितना हो गया, यहाँ से कितना रूट आया चेक करो, यहाँ से 2 रूट आ गया, राइट, 1 प्लस माइनस √13/6. ठीक है, और यहाँ से आप चेक कर सकते हो यूजिंग कैलकुलस से भी, या फिर अदरवाइज जो इट विल हैव नो सॉल्यूशन. अदरवाइज मीन्स डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइंस है कुछ उसका यूज़ करके और अलग से. ऑल्दो फिर ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन दोज हु आर इंटरेस्टेड आप कैलकुलस लगा के थोड़ा सोच सकते हो इस पर. ठीक है, तो यहाँ से नो सॉल्यूशंस आएगा. और मे बी यू कैन राइट दिस एज समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर प्लस मे बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. तो यहाँ से क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर कैन नेवर बी 0, सम ऑफ पॉजिटिव थिंग प्लस 1 कैन नेवर बी 0. दैट्स अनदर वे ऑफ प्रूविंग इट विल हैव नो सॉल्यूशन. तो फाइनली यहाँ से मुझे 4 सॉल्यूशन मिला. अब वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखो f इनवर्स x इक्वल टू f ऑफ x इन दिस केस इज गिविंग 4 सॉल्यूशन, बट द सरप्राइजिंग ब्यूटी इज f ऑफ x इक्वल टू x इज गिविंग नो सॉल्यूशन. इसका मतलब ऑल्दो f ऑफ x और x का कोई इंटरसेक्शन नहीं है, लेकिन इन्वर्स इंटरसेक्ट कर रहा है. अब सपोज तुम ऐसा सोच रहे हो जो ये कैसा हो रहा होगा, तब ग्राफ भी देख लो. ठीक है, अगेन ग्राफ बनाने का काम नहीं है, फिर आपको मैं फील से बता रहा हूँ. जो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि आप कोई भी सॉफ्टवेयर से इसको प्लॉट करके देखा जा सकता है. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ, एंड रफ फील इन फैक्ट इट कैन बी डन यूजिंग कैलकुलस ऑल्सो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नीचे. सो दिस इज योर फंक्शन f ऑफ x, जो मैं ब्लू कलर में दिया. अब इसका जो इन्वर्स होगा, सो क्लियरली इसका इन्वर्स यहाँ आएगा. ठीक है, फर्स्ट इंटरसेक्शन. और ये धनुष वाला जो होगा वो उधर कहीं जाएगा, तो धनुष वाला विल गो समवेयर हियर. सॉरी, सो रफली हाउ रिफ्लेक्शन विल लुक, कुछ ऐसा. ठीक है, कुछ ऐसा. तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो हमारे पास 1 2 3 और 4 सॉल्यूशन आया, एंड दोज 4 सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशन 0 1 1 प्लस माइनस √13/6. तो ग्राफिकली बेसिकली ये 1 माइनस √13/6 है, ये क्वांटिटी इज 1 प्लस √13/6. ठीक है, ये दिस इज 1, और ये जो आया आपका पॉइंट वो 0, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 है करस्पॉन्डिंग. तो आप क्लियरली देख सकते हो y इक्वल टू x line is not intersecting either of them, right? If you'll see y equal to x line, so there is no intersection of y equal to x with f of x or either f inverse x, but f and f inverse intersect कर रहे हैं. अब ये हम स्टार्टिंग में आपको बोल देते हैं, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो क्या है, या तो फंक्शन डिक्रीजिंग है तब तो हम गारंटी कुछ नहीं बोल सकते हैं. तो देखो यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग था, नहीं यहाँ पे फंक्शन क्या था, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग था. और दूसरा केस में अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हो भी है, इवन कंटिन्यूस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बट डिसकंटिन्यूस हो जाए तो भी हम कुछ नहीं बोल सकते. ठीक है, तो यहाँ से फिर ये कंक्लूजन आया, क्योंकि देखो ऑल्दो अगर मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो मेरा जो पॉइंट है 1,0 और 0,1, क्योंकि देखो ये तो दूसरे का रिफ्लेक्शन जरूर है, बिकॉज इज रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट इन दिस. सिमिलरली जो ये पॉइंट आएगा, मान लो ये 1 प्लस √13/6 है, उस पर आउटपुट कुछ बीटा है, तो अल्फा कमा बीटा, एंड दिस इज बीटा कमा अल्फा. ये भी एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, राइट, ये भी एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है. तो दे आर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर, वो तो होना ही होगा क्योंकि इनवर्स का प्रॉपर्टी से अल्फा कमा बीटा इज देयर बीटा कमा अल्फा होना ही चाहिए. लेकिन अब ब्यूटी क्या है, अगर अल्फा कमा बीटा इस कर्व का हिस्सा है तो बीटा कमा अल्फा भी उसी कर्व का हिस्सा हो गया, क्योंकि डिसकंटिन्यूस फंक्शन है. सो नाउ आई एम नॉट ऑब्लाइज्ड टू जॉइन इट बाय अ कंटिन्यूस कर्व. ठीक है, तो होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. सो इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऐसा जरूरी नहीं है ये सब ट्रू होगा अभी. ठीक है, सो इफ f of x discontinuous then it has also have no real solution, it must has no real solution is the wrong statement. First it must have no real solution or it will have no real solution, ये सही है. ठीक है, तो अब ऐसा हो सकता है क्या, इफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फिर भी एक रियल सॉल्यूशन आ जाए. अब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फिर भी एक रियल सॉल्यूशन आ जाए, हाँ ऐसा तो हो ही सकता है.
तो अब ये क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आगे से हो रहा है, आगे से हो रहा है मीन्स इन दिस सेंस, सपोज y इक्वल टू एक्स इज देयर, अब फंक्शन को इस दोनों पॉइंट से गुजरना है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जाके फंक्शन डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, तब तो ऐसा हो ही जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स को एक सोल्यूशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे फिर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ठीक है. So I hope you have enjoyed the lecture, and moreover there was a very interesting lecture to show you like what happens and how exactly we can find the solutions of f inverse and problems of this kind, how we can handle. I recommend you for this particular quadratic problem, ठीक है, if f of x equals let's say x square plus bx plus c, you try to solve this question. So suppose if you take f of x as ax square plus bx plus c, for this particular case, now you try to solve this question without this approach. So you can take calculus, you can define a function psi as f of x minus x and then try to investigate. और फिर अगर क्वाड्रेटिक इक्वल टू एक्स का नो रियल रूट है तो रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में आएगा अल्फा प्लस आई बीटा अल्फा माइनस आई बीटा, उसको पुट करके ताम झाम करके फाइनली आंसर लाओ, ठीक है. सो देन विल बी फुल्ली सेटिस्फाइड. सो प्लीज़ गेट ट्यून टू द लेक्चर्स, क्योंकि आई एम गिविंग यू क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री. और आपको पता है क्वालिटी कंटेंट ईमानदारी से बहुत शिक्षक दे रहे हैं ऑन यूट्यूब.